Hi everybody, this is Pranita Dash. I have secured All India rank 42 in this year's UPSC Civil Services examination. This is the first time I'm going live, so I hope I'm audible to everybody. So what we are going to do here is first I'll address the frequently asked questions by the UPSC aspirants, and then you can ask me your doubts over comments and I'll try to answer all your queries there itself. So चलिए हम शुरू करते हैं. First of all, a brief introduction. My name is Pranita Dash. I'm born and brought up in Odisha, in a small town of Baripada, but then I moved to Bhubaneswar for my schooling. Then I did my graduation in economics from St. Xavier's College, Calcutta. उसके बाद मुझे एक स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मेरा मास्टर्स करने का मौका मिला, तो 1 साल मैंने वहाँ बिताया है. वहाँ से लौटते ही मैंने शुरू कर दिया अपना सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन. लास्ट ईयर 2022 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गई. वहाँ पे मेरा एमफिल इन इकोनॉमिक रिसर्च अभी कोर्स चल रहा है, जो कि जुलाई में ख़त्म हो जाएगा. First things first, this was my third attempt at the examination. In the initial 2 attempts, I had not managed to clear the preliminary stage. So the third time proved to be lucky for me and I got All India rank 42. First of all, thank you everybody. आपने मुझे Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp बहुत सारे messages किए, बहुत सारे wishes दिए. I hope I am able to do good work as a responsible civil servant and make all of you proud. Now coming to all the messages of aspirants, आपने बहुत questions पूछे कि क्या था मेरा strategy, कैसे मैंने मेंस क्लियर किया, कैसे मैंने इंटरव्यूज़ दिए. तो मैं आपको पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि there is no set standard, there is no set strategy that will help you sail through the examination. आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से ही आपका स्ट्रेटजी आपको डिवाइस करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट एवरी एस्पिरेंट हैज़ टू डू मैंडेटरीली, और वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ. मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या किया है, रादर देन कि कोई एक श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी एट क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन. सो मेरा यूपीएससी जर्नी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मैंने एक्चुअली जब पहला अटैम्प्ट दिया था तब मेरा बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड अटैम्प्ट था. मैं ऐसे ही चली गई थी एग्जामिनेशन टू सी जस्ट कि कैसे क्वेश्चंस आता है, if I'm able to solve even a few of the questions. So I had not studied for the examination. It was just a trial attempt. But at the hindsight, I believe that nobody should ever do that. In fact, आपका first या second attempt should be your best attempts. और अगर आप subsequent attempts दे रहे हो, you should always focus on improving upon the previous attempt. तो मेरा 2020 वाला attempt was totally unprepared. However, 2021 में I made a very prepared attempt at the examination, but then I missed prelims by less than 2 marks. So I was totally devastated. फिर मैंने ऑलमोस्ट सोच लिया था कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट फॉर मी. ये शायद बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग क्लियर कर पाते हैं और शायद मैं उनमें से नहीं हूँ. बट दैट इज़ व्हेन द फैमिली, the mentors, वो they stood by me, my friends, they told me that no, you'll be able to do it. और फेलियर के बाद गिव अप करना इज़ नॉट एन ऑप्शन. यू शुड इम्प्रूव अपॉन योर प्रीवियस अटैम्प्ट, और फिर आपका जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है वो आप बहुत ही बेटर वे में आप दे सकते हो. सो मैं बोलूँगी कि अगर ऐसे कोई एस्पिरेंट्स अभी देख रहे हैं जो बार बार फेलियर्स का सामना कर चुके हैं, मैं बोलूँगी कि डू नॉट गिव अप. अगर मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया तो आप सब भी कर सकते हैं. I was never someone who was like the topper throughout school, but I was a very sincere student. तो आप अगर आप सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहे हो, अगर आप को हार्ड वर्क
करने में कोई झिझक नहीं है, then this exam is definitely for you. And sooner or later you will definitely clear this examination. Just have enough confidence in your abilities and keep going. Perseverance ही आपको इस एग्ज़ाम में अच्छा आपको सक्सेस दिला पाएगा. अब मैं आपको अभी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ. पहले कमिंग टू द बुक लिस्ट्स. तो बुक लिस्ट वही है जो सबका होता है. जैसे कि द यूजुअल बुक्स, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, एंशियंट मेडिएवल के लिए मैंने रेफ़र किया था जो न्यू NCERTs है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री. मॉडर्न इंडिया के लिए वो स्पेक्ट्रम का वो बुक वाज इनफ फॉर मी. एंड इकोनॉमिक्स मेरा ऑप्शनल था, तो मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई सेपरेट बुक नहीं पढ़ा था. सो दिस वाज जस्ट द नॉर्मल जो मैंने ऑप्शनल में पढ़ा था उसी को ही मैंने ब्रशअप किया. बट हाउएवर इफ़ यू डोंट हैव इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और आप GS के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आई हैव हर्ड कि श्री राम का जो ब्लैक बुक आता है दैट इज़ क्वाइट इंफॉर्मेटिव, तो आप वो देख लीजिए. And at the same time you can also like focus on the very important topics like inflation, monetary policy, fiscal policy. वहाँ से questions बनते ही बनते हैं. और आप इकोनॉमिक्स के जब आप प्रीलिम्स के questions solve करोगे तो always look at the past year questions. वहाँ पे you will get a hang of how questions are being asked by UPSC. जैसे कि statements having the word consistently, they are bound to be wrong. And at the same time अगर कोई बहुत ही extreme statements है कि this policy always results in this, तो that definitely is wrong. तो वैसे ही आप पढ़ाई भी कीजिए कि आप पहले पास्ट ईयर्स देखिए और फिर आप समझ जाइए कि ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्ज़ाम्स में. तो आपका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा प्रिपरेशन विथ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड. इकोनॉमी गया, फिर हम एनवायरनमेंट के लिए अगेन द सेम बुक दैट एवरी एस्पिरेंट यूजेस, द शंकर IAS बुक. साइंस एंड टेक जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, इन सब के लिए मैंने बस करंट अफेयर्स ही फॉलो किया था. और करंट अफेयर्स में आपका हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हैं और एट द सेम टाइम जो भी आपका मंथली मैगज़ीन्स है वो मैंने फॉलो किया था. कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए और उसको एंड ऑफ द मंथ में पढ़िए और फिर बार बार उनको रिवाइज कीजिए ऑल द इन योर माइंड. So what you can do is you have to consistently revise those current affairs so that it kind of gets ingrained in your memory. और मैंने क्या किया था कि डेली करंट अफेयर्स जो भी साइट्स में आते हैं, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वो लोग डेली करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं. तो यू डोंट हैव टू नेसेसरीली गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल, बट न्यूज़पेपर से जो टॉपिक आपका छूट गया है, आप क्या कर सकते हैं कि आप वो डेली करंट अफेयर्स वो ब्लॉग, वो वेबसाइट पे जाइए और फिर आप देख लीजिए कि क्या आपने मिस किया है. एंड एट द सेम टाइम वो लोग डेली क्विजेस भी निकालते हैं करंट अफेयर्स के. तो आप एक काम कीजिए कि हर दिन वो 5 या 10 क्वेश्चंस ट्राई टू सॉल्व. सो दैट पुट्स यू इन द हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. एंड एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हैं कि कहाँ आपका क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहा है. अगर आप 10 क्वेश्चंस में से 4-5 क्वेश्चंस गलत करें तो आप थोड़ा एनालाइज कीजिए कि कहाँ मेरी गलती हो रही है. मैं क्वेश्चन तो नहीं गलत पढ़ रहा हूँ, या मैंने शायद अपने जो भी पढ़ा था उसको शायद अच्छे से मेमोराइज़ नहीं किया. तो ये सब आप थोड़े देखिए, एनालाइज कीजिए कि क्या आपका गलत गया है. एंड एट द सेम टाइम जब आप नेक्स्ट डे वो क्विजेस करेंगे तो मेक श्योर कि आप ये गलतियाँ रेक्टिफाई करने की कोशिश करें. सो दैट पुट्स यू इन द हैबिट ऑफ taking exams, taking like solving a lot of questions, and that will definitely help you in making intelligent guesses or eliminating options during the prelims examination. So what I realized was कि जैसे
जब मैंने फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट दिया था तो मेजॉरिटी ऑफ माय फोकस इट वेंट इनटू द करंट अफेयर्स, क्योंकि इतना बल्कि होता है तो आपको लगता है कि ये इसी पे ही फोकस ज़्यादा डालना पड़ता है और हम स्टैटिक को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, और स्टैटिक हम सब्सिक्वेंट रिविजन्स शायद नहीं कर पाते हैं। बट आफ्टर not being able to clear the preliminary stage in the first two attempts, I realized that अगर आपने स्टैटिक अच्छे से पढ़े